Okay, interview asked me that constructor returns. I said constructor returns nothing nor void, but interview said it returns something which you can't recall now. I need to double check that. Are you talking specifically about React? Java constructor does not return anything in Java. That's I'm sure. No, constructor does not return any value. Same answer. Okay, cool. So हाँ एक चीज हमेशा याद रखो while coding the React as well, right? Whatever I'm trying to say here, try to practice it as well. How many of you guys practice whatever we have taught in the last class? If you are not able to practice side by side, probably after the class, try to practice at least, so that you will be good with the syntax as well. Plus, you will feel confident in writing the component and everything. It's easier to understand, but it's difficult to implement sometimes. And when you will actually practice, then you will realize, yeah, it's easier to implement as well. So let's start with simple class, my game. Okay. Extends React dot component, right? We have a class. Okay. Import React from React. Cool. And then what? What is the mandatory method in the class-based component? That we need render, exactly. So we'll have a render method. And what the render method does? It returns a JSX, right? So it will return a JSX, right? This is the basic skeleton of any class-based component, right? And if you want to use the props, we need to have a constructor with a props parameter, super props, right? This was a typical structure for a class-based component. Let's start creating some pieces in this so that the game will turn out to be okay. So let's start with the tag for now. So I'm not explaining the HTML tags because it's pretty straightforward, simple. Whenever we'll use the React concept and how it is explained, super explain, please. See, super means calling the method, yeah, calling the constructor or initialization factor of the component from which it is extending. So in this case, it is extending from this component class, right? So super eventually means you call the method for the component class that is defined in the React library. So super is a general method that is in every programming language, and it specifies that you need to call the parent method. You need to call the parent initialization method. Okay, so simple, guess a number, write your guess and click predict, right? So we need to have some mechanism of taking the input for the guess, right? And there should be some button we should say predict, right? So for that, let's suppose create yeah. If any doubt, feel free to unmute and ask the doubt. Okay.
Okay. So till now we have written only the HTML basic skeleton, and then we'll plug the React features in it, how it will work. Okay. So I hope no doubt till here, right? Because it's just the normal HTML stuff. Okay. See, constructor is another lifecycle method. I'll come to the exactly what there are other lifecycle methods as well. When we'll start using those lifecycle methods, I'll explain what lifecycle methods are. Constructor is also a lifecycle method which is called at the time of creating the component. It helps in creating the component. So whenever you pass something to as the props, right? The constructor should call the parent constructor method to pass on those props so that the props is correctly getting assigned into the props variable. Function component में क्या था? सीधे तुम props pass करो and it will be directly available inside your props variable. In this class-based component, it won't be directly available to you. So for that, you need to receive the properties in the constructor, and that is exactly used for the initialization of that class. Call the parent method, that is the super. With the super, you invoke the initialization for the parent. And in the component class, the code is written to correctly assign the props value. And after that only you can access the props. I hope that answers your question. Cool. So let's go back here. Let's get rid of everything. App.js. We have not exported. Okay, and then we'll display just our my game here now. Cool. Let's go here. So we have a guess a number, write your guess and click predict. We have an input box with the placeholder as the guess where we need to. Props is keyword, right? It's not exactly a keyword. Props is the shorthand for the properties. We can use any other variable, like whatever we have seen in the functional component, right? That you now can you see it? So yeah, so props is not a keyword. So in functional component we have seen, right? We can change the name of the props as well. Like we can, instead of this props, we can say properties, we can see XYZ, and based upon that it can be accessed. But in class level component, what happens? You need to pass on this value to the parent, right? And this parent is someone who assigns the correct reference, and that's what you need to specifically pass that props word. So whenever we tend to pass the properties, try to use the props only, and the props is the known name everywhere for the passing the properties. Cool. And now if we'll enter here anything, it will allow us to enter, right? So till now it's a simple HTML stuff only. Now we'll start plugging into the React code here. Cool. Let's come here to our my game component. Okay. So first of all, yesterday we discussed something about a state, that we are going to discuss a state. So a state is something which is going to hold some properties of a class, right? So state is something that will hold the properties of a class. So whenever you want to have some kind of information related to a class, then you can define those in the state. So in this game, what all properties can be required? Can you guess what all properties will be required for a class? Anyone? Subse simple, right? It's a game, right? So probably we can have a property around whether what's the current status of a game, whether it's the result is announced or result is pending, right? Something like that. And maybe there is two numbers involved. One is the guess number and the second one is the prediction, right? So guess that you are doing and prediction that computer is doing, right? So there will be two numbers, guess and prediction, that will be required, right?
Correct. Two numbers. One may be the result of the game. And if you want to have the winner, right? So probably we can have the winner name, either computer or the player. Cool. So let's start creating the state. And one special thing about a state, whenever the state changes, the component re-renders. इसको एक बार बहुत ध्यान से सोचो, right? It's a very important point. Whenever a state changes, component re-renders, because we eventually use the state to display multiple things on the UI, and whenever any properties of the state will change, it will ultimately going to change the UI. So whenever there will be a change in the state, it is going to re-render the UI. Clear? And always the state is changed via a method called set state. Remember two things. Whenever a state changes, it re-renders the UI. Okay. Always the state is modified by a method called set state. ये clear है ये point? Any doubt in these 2 points? The React has mandated us that whenever you want to modify the state, you need to call the set state method. Re-render means UI फिर से render होगा, right? It will replace some HTML element of the DOM. UI will be re-rendered. Not exactly reloading the page. See, reloading means the entire component gets reloaded, right? But in React, not entire components get reloaded. It just updates the HTML DOM. So the content on the page will get updated. Cool. इस point को हमेशा याद रखो. We always mutate. Mutate means changing. So we always mutate the state only with a method called set state. Okay, and this is a very important point, and many times it can be asked as well. Local storage and session storage, no. So state is the collection of property which any of the class can hold. Okay, and whenever we want to change a state, we need to call with a set state method. Except one of the difference, या एक ही place ऐसा है, there is only one single place where the states are assigned directly, and that is directly in the constructor method. Because constructor क्या है? It is invoked first, right? यहाँ पे initialization होता है. That's what the React has mandated us. In constructor, you can assign the state directly. After that, wherever you want to mutate the state, you need to call always the set state method. देखो, I am trying to emphasize this point because this is a very important point. इस point को हमेशा दिमाग में नोट कर लो, ठीक है? इसको मैंने 3 बार 4 बार इसलिए इसी चीज के लिए बोला है. नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, राइट? ठीक है, एंड एग्जांपल लेंगे तो वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. बट ये डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले 1-2 बार एक्सप्लेन किया, एंड देन एग्जांपल में देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो हमने क्या बोला? कंस्ट्रक्टर इज द ओनली प्लेस. Okay, I'll repeat again. Jab I'll write the code, there I'll explain again. Okay. Constructor is the only place where we actually set the state directly. Apart from there, at every place where we want to mutate the state, we need to call the set state method only. Okay. So here we are writing the code in constructor for the initialization. Okay. So we'll say something like this. Okay. सबसे पहले करना अपने को स्टेट असाइन, राइट? तो विल से cool this dot state, because this is only the place where we can set the state directly without calling the set state method. Apart from that, everywhere we need to call the set state method only. Cool. And state is an object where you can set multiple properties. UI page in the VS Code in this. So if I'll
do this. Just a second. Hello. जाना नहीं Can you guys hear me now? Okay, cool. So is this better, or we should maximize this React window? Better? Okay, cool. So in constructor, we can assign the state directly. Okay, so let's start. And state is an object and which can have multiple properties. So let's start with assigning some properties. So by default, we'll have a number called guess, right? And let's assign with a 0 because we are trying to guess from 0 to 100. Okay. And then we'll have a number called prediction. And we, in constructor, we generally assign the state with a default value. Okay. So here we are just assigning with a default value called 0. Okay. And then we can have a result. And those things will declare as we'll go ahead and use those variables. So currently, let's start with only these two values. Okay. See, I'm going to teach the first we talked about function-based component. Now we are discussing the class-based component, right? So there are certain special properties, the lifecycle methods and all, right? Earlier it was only available in the class-based component. Now it's also available in the functional-based component. So it's always better to learn both. Okay. And based upon your preference, you can use whether the functional component or the class-based component. Cool. And we'll see the difference between some differences we have already seen and some differences we'll see after completing our class-based component. Cool. So we have a property called guess. We have a property called prediction. Now let's change this value to, and now we are going to set the input value with the state variable. So this will be this dot state dot and now we don't need this placeholder. Okay. Now let's see as soon as we have saved this, right? It has put 0 here, right? Why?
because the value of that input field is now bind to a state variable, right? Now we can't do anything. We can't write anything. See, I'm typing my key, right? I'm pressing my keys, but it is nothing is happening here. Why? Because it is bind to now that state variable, right? And that state variable is never changing. As soon as we initialize our component, it will stick to 0 value, right? And we are not changing that value altogether. So no matter what we do, we will not be able to change this value here. Now, we need to have some mechanism. Is state and use state are different. See, whenever we'll discuss those components, definitely we'll come to that. But for now, I'll just explain that point. See, we started with a functional component. We are now on the class-based component. As I said, the class-based component were earlier you can use the state method. The state was a thing that was only available in the class-based component earlier. Then in the later React versions, the functional component also started multiple things to come as per with the class-based component and use state, and hooks was a thing that was given to a functional component to match as like a class-based component, and use state is exactly a hook that can use to manipulate and store the state. Cool. देखो प्रोसेस जानो, अगर अभी whenever anyone understands React, right? So क्या होता है कि they will understand कि use state होता है, right? Use effect होता है. These are the hooks, right? But why these things are introduced वो भी समझना जरूरी है. जब मेरे पास class based component already है, functional component already है, तो functional component में क्या जरूरत था उसके introduction की? Why these things are happening at the class based component as well? So try to understand this journey as well, from where it started and now where we are. So I'm trying to teach you from both the perspective, earlier how it is used to be, right? And why it is exactly got changed. Cool. Okay. So now we need to do something, right? To change the state, right? So change the state means, and when we want to change the state in this case, right? Whenever we want to type anything in this input, right? So for input, we have a listener, right? Normally for the input boxes, we have a listener, right? What kind of a listener we can have? On change listener, right? So on change, okay. And then we need to pass on some value, right? Some method. So let's define a method, okay. Let's suppose update guess, okay. Now, what I told, state can only be mutated by using which method? On click we know, sir, but on change, see, on click is generally used for the buttons, right? When we'll click on this predict, अच्छा ये गेम कैसे वर्क करेगा वो मैं बता देता हूँ. You need to input some values here, then you need to click on predict. Computer will predict a number, and then you need to match those numbers, right? So for input box, what kind of event we have, right? On change event, right? On click event is generally for the button, right? For input boxes, generally we have a on change event. Okay. Now, which method is used to mutate the state? Everyone. What is on change? Whenever we change anything on the input boxes, the event that is fired is named as on change. Cool. Which is the method that is used to mutate the state? Exactly, set state. Cool. ये याद है सबको? ये एकदम दिमाग में फिट कर लो. Set state is the method which is used to mutate the state. No other method. And directly, never assign the state directly apart from in the constructor. Okay. This dot state, set state method will pass on in parenthesis, right? And then state is an object, right? So we'll say something like this, because हम object को mutate कर रहे हैं. And which parameter we want to mutate? We want to mutate the guess, right? With a new value, right?
We don't have any new value. Let's suppose for now, let's assign with only a random value called 5. Now let's see what happens. As soon as we click save, right? This on change, right? Because we have not passed anything on the on change. Okay. So we'll say this dot, what's the method name? Update case. Cool. One more thing. Yes. I'll come to this as well, how we can remove this line altogether, okay? Because here we have not used the arrow function syntax. After justice will modify this to use the arrow function syntax, and then we don't need this. And you guys remember this this variable bind and those things from JavaScript class? Cool. Now let's save this. Okay. So as soon as we have saved this, see, this value is still set to 0, right? Because we have not done anything. The initial value, we don't know bind. Call and bind JavaScript में नहीं cover हुआ है. Bind, call and bind is a JavaScript method, right? जो this को assign करने का काम करता है. There is two different syntax for the call and bind. JavaScript के probably there will be can be a different class where I can explain some topic of the JavaScript जिसमें कि this है, because these are the confusing topic. This in JavaScript is very confusing for sure. ठीक है? Call, apply and bind, exactly that method जो chain है उसको कहते हैं call, apply and bind. एक बार रेफर करना जावास्क्रिप्ट के कॉल, अप्लाई एंड बाइंड को, बिकॉज उसके लिए थोड़ा अलग से टाइम चाहिए. ठीक है, कांट बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ दिस, बट अभी के लिए इतना समझो कि बाइंड चेंजेस द दिस रेफरेंस इन दिस केस. मतलब जो तुम्हारा दिस का रेफरेंस है उसको बाइंड करने के लिए ये यूज हो रहा है. इसको अभी हम लोग हटा देंगे. इस लाइन को हटा करके सीधे एरो फंक्शन सिंटैक्स यूज कर लेंगे. यस, कॉल, अप्लाई, बाइंड, राइट. ये जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू का वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है. तो अगर ये नहीं कवर हुआ है तो आस्क न्यूटन स्कूल से, राइट, कि दिस टॉपिक इज नॉट कवर्ड, आस्क समवन टू कवर दिस टॉपिक. आइदर मी और समवन एल्स विल टेक दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट. ओके, देन आई ऑल्सो, जिससे मेरा बात होता है प्रोबेबली समर्पण, या जिससे मैं उसको ये बोल दूंगा. उसने मुझे बोला था कि फॉर द जावास्क्रिप्ट most of the topics are covered, few of the topics are left that will be covered later on, but I'll specifically raise this point key to cover these topics as well. Cool. So okay, let's come back to our example. Okay, so we have saved this, right? The start value of our state is still 0, right? Start value of our state is still 0. That's what we are saying, 0. But what we said, on change, fire this method, okay, and update the guess to 5, right? So I am coming here, okay, pressing any of the random keys. Okay, see, I have pressed I, but it has changed its value to 5. It is not taking my input, right? Why? Because the value of this input box is bind to a state variable called guess, and in on change we are every time setting the state to this 5. That's what this value is changed to now, 5, right? But we don't want this, right? We want this value to be updated as whatever value we type, right? जो value हम type करते हैं वो हमें pass करना है. So for that you need to pass from here on change में. ठीक है, E is nothing but the shorthand for the event, right? जो तुम्हारा जिस इनपुट बॉक्स पे इवेंट हो रहा है वो, अगर इसको चाहो तो इसको वी कैन चेंज एज वेल. ई के जगह इवेंट या व्हाटएवर यू वांट, यू कैन राइट इट है. Okay, and then pass on just this value. Okay, and as soon as we have passed this value, it will be available here, right? I'll print this value for you guys so that it's clear. Okay, see,
it has printed some value, right? दिखाता हूं मैं एक सेकंड, वो मॉनिटर से थोड़ा हाइड हो रहा है इसलिए I'm just turning the camera to, हाँ, see, so you can see, right, it has printed the event, right? And if you see here, there is a value called target, right? And inside this target we have a value called value. So in this value we have the actual number, so you can see 5 here, right? So what we'll do, we'll come here and set this to, हाँ, that's just the event, right? Event पूरा देखने की जरूरत नहीं है, you guys can print the event. मैं बस वो बता रहा था कि we have a event, inside that we have a target and then we have a value, right? Target and then inside target we have a value. E dot now start typing something. Let's suppose we are typing, see, it is correctly getting typed, right? Why? Because whatever the value that we are passing, we are correctly assigning to a guess value, right? And the same value is bind to the value of this input box, so it is correctly getting reflected, right? Now we can define another method, right? On a on click of a button, right? On a on click of a button, what you want? We want to achieve, what if we provide empty in guess? Empty in guess means initial value is empty, right? See, initial value was set to empty, so that's what this input box was empty. See, correct? And then whenever, as soon as we are changing the values, it will be correctly getting that value. But we are taking 0 because हम लोग को numeric comparison करना है. That's what we have taken that value as 0. Okay. And then whatever, see, placeholder is nothing but input box में, ये HTML का part है. Input box में placeholder is something, जब भी कोई इनपुट बॉक्स भी देखते हैं, राइट, उसमें रहता है इंटर योर पासवर्ड या इंटर यूजर नेम, राइट, हाइलाइटेड टेक्स्ट नहीं होता है, राइट? सो प्लेस होल्डर इज डमी टेक्स्ट या राइट डमी टेक्स्ट व्हिच गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन कि तुमको क्या करना है उस इनपुट बॉक्स के साथ, व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू फिल इन देयर. वी कैन स्टिल राइट प्लेस होल्डर, ठीक है? प्लेस होल्डर इज जस्ट अ सजेशन फॉर दैट इनपुट बॉक्स. ओके, नाउ लेट्स ऐड द ऑन क्लिक लिसनर, राइट? On click listener for a button, right? Same way we need to pass on some method. Okay, so this dot, let's suppose we give a predict, method name as predict, create a method predict here. Okay, predict. Cool, let's create a method called predict. Predict में क्या करेंगे हम? काही कळत नाही की बे, काही कळत नाही की काय सांगतो चुपचाप. Yeah, placeholder we have removed, right? See, placeholder we have removed from this input. Yeah, we'll generate a random number. Okay, so let's use this time our arrow function syntax. Okay, okay, and then console log predict click. Okay, and predict में अपने को क्या करना है? सबसे पहले एक रैंडम नंबर करना है, राइट?
कोड में कोई प्रॉब्लम? राइट, नॉर्मली वी आर जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, सील कर रहे हैं, फ्लोर कर लो, ठीक है, राउंड कर लो, सील कर लो, फ्लोर कर लो, सबका अलग अलग बात है, ऑलमोस्ट काम से भी कर लो, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज हम 0 to 100 ले रहे हैं अभी, ठीक है। विल क्लिक ऑन दिस प्रेडिक्ट, सी मैसेज डिस्प्ले हुआ, प्रेडिक्ट क्लिक, राइट, and it has number 77. Same way again will click, right, predict click, and number is 31, right? You guys can see, right, number 31. Cool. So that means on click of that button it is correctly getting called. Now what we need to do, we need to say, right, if our prediction हाँ, मतलब इस गेम का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज हम ग्रेटर नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। यू कैन से कि आई विल प्रेस 100 डायरेक्टली, राइट, मतलब मैं 100 प्रेडिक्ट करूंगा तो हमेशा मैं ही जीतूंगा, दैट्स अ कैच, बट हियर वी आर जस्ट लर्निंग, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई गेम बना रहे हैं, राइट। सो वो लॉजिक मत बोलना कि 100 प्रेस कर देंगे तो सर विल ऑलवेज विन। कूल। सो ना if prediction and let's set this value. So mutate the state, we'll use the set state method, right? And here we need to do what? We need to set the prediction with prediction, right? We'll set the prediction. Prediction कौन सा? ये वाला स्टेट वाला जो prediction है, और ये prediction कौन सा है? ये, इसको कुछ नाम अलग कर देता है, ठीक है, ठीक है। prediction is not defined, भाई लाइन नंबर 25 21 25 21, ठीक है, इसको भी प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, गॉट इट। नाउ विल जस्ट ऐड वन लाइन हियर, ओके, h3 या h2 ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या डिस्प्ले करना है? कंप्यूटर ने जो नंबर गेस किया, तो कंप्यूटर हैव गेस्ड, गेस्ड, राइट। इसको बाइंड करना है किस वैल्यू से? प्रेडिक्शन से, राइट। सो दिस डॉट स्टेट डॉट प्रेडिक्शन, राइट। as soon as we save this, right, computer has guessed 0, right? तो थोड़ा ये और लग रहा है कि कंप्यूटर ने 0 तो अभी नहीं गेस किया है ना, तो उसके जगह पे सिंपली हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन टर्नरी ऑपरेटर विल यूज, राइट। क्या ये 0 है? अगर हाँ, see, it is correctly getting reflected, right? Computer has guessed number. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखो, one by one we are adding one or the other things, so this will keep on getting complex, right? तो अभी कोई प्रॉब्लम है अभी तक में? 24th लाइन प्लीज, 24th 24 तो सिंपल है, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट रैंडम, राइट। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, बिटवीन 0 to 1 एक वैल्यू करता है गेस, राइट। उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन वी आर टेकिंग, जैसे कि 89.3 आता है तो विल टेक द नेक्स्ट नंबर 90 ले लेंगे, 88.3 आता है तो 89 ले लेंगे। व्हाट वाज द लास्ट सेकंड प्रेडिक्टेड गेस? What was the last second predicted guess? I'm not able to, more than 100. State of prediction, why not this dot prediction? कहाँ पे? Okay, because these are the properties assigned in state. So state is bind to this, right? Now prediction has a property inside state.
state is an object, right? And prediction is a key in that object, right? So that's what we need to call this dot state dot prediction. And state have multiple properties, right? Prediction, guess, right? Any doubt? कोई और further question? और इतना टाइप करने में जिसको टाइम लगाते हो, राइट, फील फ्री टू अनम्यूट एंड आस्क, कोई दिक्कत नहीं है. दिस डॉट देखो, दिस डॉट अब ये यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, राइट? बिकॉज वो जो प्रेडिक्शन है वो स्टेट के, अरे आज संडे बघा 2 दिवस नव्हतं, आज लगेच थंडी वाढली. ठीक है, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी अनम्यूट करो, वो भी है एक, देयर इज अ कैच इन दैट स्टेटमेंट. Cool. We have changed again to state, right? अच्छा, किसको मार नहीं पड़ी है? शिवेंद्र, कभी ऐसा नहीं हुआ बचपन में मार नहीं पड़ी है? ऐसा यहाँ पे कोई है जिसको बचपन में कभी मार नहीं पड़ी है? पड़ी है ना, तो सबको पड़ती है, मतलब मुझे भी पड़ी है, सबको पड़ी है. तो कोई ऐसा नहीं हो सकता है जिसको बचपन में मार ना पड़ी हो. ठीक है, चलो. हाँ, सो अगेन कम बैक टू सेम पॉइंट. ठीक है, बीच बीच में एक आध थोड़ा सा होते रहना चाहिए. देखो, पढ़ाने में एक चीज और इम्पोर्टेंट, देखो, हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी दैट एक नॉलेजेबल पर्सन हमेशा एक गुड टीचर होगा ही, क्योंकि टीचिंग के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल्स एज वेल, कि कैसे बॉन्ड करना है, कैसे क्या करना है, राइट? आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, मार नहीं पड़ती, बट मार से ज्यादा बात लगती है. हाँ, तो आजकल के जो निब्बा निब्बी हैं, राइट, निब्बा निब्बी इज द वर्ड, राइट, फॉर दिस न्यू जनरेशन. तो ये निब्बा निब्बी जो है ना, उनको आजकल डांट पड़ती है, बेचारे मार सह नहीं पाएंगे ना ज्यादा, इसीलिए निब्बा निब्बी को डांट पड़ती है. ठीक है, तुम लोग निब्बा निब्बी नहीं हो, तुम लोग भी कितना मेरे से, यू गाइस आर कॉलेज पास आउट, राइट? कोई ऐसा है जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी गया ही है? जनरली क्या ट्रेंड है, मतलब कॉलेज पास आउट, फोर्थ ईयर या यूनिवर्सिटी पास आउट, राइट? मोस्टली पास आउट होंगे, राइट? पास आउट होंगे या फोर्थ ईयर वाले होंगे? हाँ, कोई ऐसा है जो फर्स्ट ईयर में है? कोई नहीं है फर्स्ट ईयर वाला, राइट? और कोई ऐसा है जो मेरे से सीनियर है? सो मधुबाला, यू आर एग्जैक्टली सेम, आई एम आल्सो 15 पास आउट. कूल, ऑसम. अमित, अमित कौन से बैच से पास आउट हो? क्या 2000? अमित इज देयर इन द क्लास? अरे ऐसे, अरे ऐसे भैया बोल के मत करो रे, ऐसे कौन करता है? ठीक है, अगर है, अगर कोई पढ़ रहा है, राइट, तो बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए, राइट? क्योंकि थोड़ा सा, राइट, मतलब वो पढ़ने का भूख होना चाहिए, वो सीखने का भूख होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली. मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि मैं भी इतना, मतलब डेडिकेशन से पढ़ पाऊंगा. एग्जैक्टली, सो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एनीवन. ठीक है, ए बिग निब्बा नहीं, बिग निब्बा होगा तो तुम क्या हुए, छोटा निब्बा. आर वी, लर्निंग हैज नो लिमिट, राइट? ठीक है, चलो, वो हमारे हेड है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. हो गया आप? ठीक है, बीच में थोड़ा सा टाइम पास होना चाहिए. चलो वापस आते हैं इस पे. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? अगर कोई डाउट है अनम्यूट करो, पूछो जल्दी से, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे.
कूल, ठीक है। सो बैक टू स्टेट डॉट प्रेडिक्शन, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, राइट। व्हाई नॉट दिस डॉट प्रेडिक्शन, व्हाई दिस डॉट स्टेट डॉट प्रेडिक्शन, which one, Sai? From predict, from, अरे साई क्वेश्चन पूछ लो, ऐसे फ्रॉम प्रेडिक्ट बोलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्ट वर्ड है, राइट। फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट। अच्छा देखो, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। सी, वी हैव अ मेथड कॉल्ड प्रेडिक्ट, राइट, that we are bind on the on click of that button, okay, and this method is getting called predict, right. Simply we are just generating a random number, right. You can have your own logic for generating the random number, okay, and just we are setting the state with this जो भी हमने predict किया है कंप्यूटर ने, right, random number that we are assigning to a state prediction value, right, as simple as that. Explain Hello? whole code of, yeah. Sir, why we assign prediction to predict? सी देखो, यहाँ पे हम वो मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे, राइट। कंप्यूटर हैज गेस्ड सम नंबर, राइट, एंड दैट नंबर नीड्स टू चेंज आफ्टर ईच एंड एवरी गेस, राइट। सो दैट वी हैव, दैट्स व्हाई वी हैव बाउंड दैट टू अ वैल्यू कॉल्ड प्रेडिक्शन, राइट, एंड वी आर चेंजिंग एज सून एज कंप्यूटर गेसेस समथिंग। Okay. Okay. हाँ, मतलब डायरेक्टली तुम क्या बोल रहे हो, ये जो मैथ डॉट को यहाँ पे लिख देना, राइट। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वही कर सकते हैं ना। हाँ वो दस, उसको मैंने एक वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। यहाँ पे वो लॉजिक लिखो, उसको मैंने एक वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट सर। कूल, ठीक है। सो विल क्विकली स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे गेस हो रहा है ये राइट है, देन लेट्स से ओके const and yes, right, yes, and yes, it's greater than predict, okay. Okay, then what we are doing, we are just checking whether whatever number that we have guessed is greater than predict or not. That means जो number हमने guess किया है in this input box, whether it is greater than the computer का prediction, right. And then based upon that we need to assign whether the player is the winner or the computer is the winner. Cool. And let's have this winner as well as the state property that we can display. So let's add this winner, okay, winner will have some default name for here, and then let's have a value called result, okay. And result is something whether the result of the game is out or not, right. So result property will specify whether the result of the game is out or not, and the winner will specify who is the current winner of this game. Cool. Now as soon as we have done this, right, we are assigning result to true. That means someone has won the game, right? So result is out. So that's what result we are setting to true. And then winner we are assigning with winner, okay, clear. यहाँ पे देखो winner हमने किया था, and then we are assigning the same winner with the winner. अगर यहाँ पे clear करना है तो इसको winner name कर देते हैं, इसको winner name कर देते हैं, okay. Now we have some properties, right? Result, winner, and prediction, right? Prediction we have already used here, okay. And then you need to, अरे ये सही हो रहा है, right?
and then what we need to do, we need to print who is the winner, right? So for that, let's create a separate component. Why separate component, right? क्योंकि कुछ करने को नहीं है तो सेपरेट कंपोनेंट में उसको बनाते हैं. Why? I'll explain why. Because दो लाइफ साइकिल मेथड जो हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है. सो विल इसी से वो एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है एंड कैसे कंपोनेंट रेंडर होता है. कूल. एंड हमारा एक और कंसेप्ट वो भी पढ़ना है अपने को कि हाउ टू पास द मेथड एज अ प्रॉपर्टीज, राइट? हमने कल प्रॉमिस किया था, विल सी, राइट, कि हाउ टू पास मेथड एज अ प्रॉपर्टीज. So for that, we'll use this. Okay, we'll create a separate component. Okay, winner message, winner message dot js. Okay, इसमें सिंपली लिखते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है. क्लास winner message, winner message extends. कूल. यहाँ तो कोई डाउट? ये सिंपल मैंने फॉर्मेट रेडी किया है जो हमारे नॉर्मल क्लास बेस्ड कंपोनेंट का फॉर्मेट है, राइट? यस, वी कैन चेक बाय इफ एल्स आल्सो, राइट? बट इफ एल्स लिखना एक से ज्यादा बेटर है टर्नरी ऑपरेटर यूज करना, राइट? अगर सिंपल कंडीशन है तो ऑलवेज प्रेफर टू यूज द टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है. इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज ये सिंपल सा मैंने सेम फॉर्मेट अभी तक लिखा है, नथिंग फैंसी इन दिस, राइट? हमने एक नॉर्मल स्टेट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, राइट? नाउ we need to show the winner. So for that we'll use props. Okay, prop dot winner. Let's suppose हम लोग यहाँ एक दिखाते हैं winner. Okay, and we just bind this component here. Okay, अभी के लिए तो we'll import कर लेते हैं इसको. Okay. Winner message, winner message. Okay, and let's use it here. Okay, cool. The winner is आ गया, right? अब अपने को क्या करना है, इसको पास करना है एक प्रॉपर्टीज कॉल प्रॉप पास करना है, राइट? तो विनर प्रॉप्स का नाम था विनर, राइट? विनर यूज कर रहे थे वहां पे, दैट्स व्हाट वी विल जस्ट पास द प्रॉपर्टी एज द विनर. एंड इसमें कौन सी वैल्यू पास करनी है अपने को? विनर नेम. सो वेयर दिस विनर नेम इज स्टोर्ड, स्टेट डॉट विनर, राइट? ये स्टेट में ये वैल्यू है, राइट, जिसमें हम लोग असाइन कर रहे हैं विनर का नाम, कंप्यूटर और प्लेयर, राइट? कैन आई बाइंड यूजिंग फंक्शन एरो? हाँ, so here we have seen, right, this second method predict, right? Here we have used the arrow function only, we have not used the bind. So either you can use the arrow function or you can use the bind, anyone is fine. We'll get rid of this. इस लाइन को कमेंट कर देता हूं, इसको एरो फंक्शन बना देता हूं. सिंपल हो गया, डन. मैक्सिमाइज पैरेलली दिखाना तो है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. रुको, अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या इसका? इतना बड़ा बड़ा तो स्क्रीन है.
स्क्रीन विजिबल है राइट एडिटर? कूल, ठीक है। क्योंकि इसको ओपन इसलिए रखा है क्योंकि जब कुछ एडिट होगा तो यहाँ पे देखते रहो कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। सो विनर मैसेज हमने डिस्प्ले किया राइट, सेम वे वी हैव सेव्ड दिस। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट अभी के लिए क्या करते हैं, डिफॉल्ट स्टेट विनर का हम लोग बना देते हैं, लेट्स सपोज प्लेयर, या कुछ भी बना दो, चलो रवि है विनर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टली डिस्प्ले हो गया राइट, द विनर इज रवि, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या है, ओ सॉरी, हाँ सॉरी उसका, ओके वो याद नहीं था मुझे कि मेरा फाइल विंडो खुला हुआ है, हाँ ओके करेक्ट। सो विनर इज रवि राइट। नाउ इसको मैं वापस डिफॉल्ट स्टेट में ले आता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं राइट, वी ओनली वांट दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट टू बी डिस्प्लेड राइट, जब क्या होगा, रिजल्ट वेरिएबल आउट है राइट, जब तक रिजल्ट ट्रू नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आया है, तब तक इसको दिखा करके क्या फायदा, द विनर इज राइट। सो फॉर दैट वी नीड, ये पॉइंट समझा क्या मैं बोल रहा हूं? जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं है राइट, कोई जीता या हारा नहीं है राइट, तो इस मैसेज का कोई सेंस नहीं है राइट, द विनर इज। सो फॉर दैट विल जस्ट हाइड दैट थिंग। तो हाइड कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज विल चेक राइट दिस डॉट स्टेट डॉट रिजल्ट, ओके ओके, ये ट्रू है क्या? अगर ये ट्रू है राइट, तो क्या करना है अपने को, ये कंपोनेंट दिखाना है, ओके, नहीं तो ये कंपोनेंट नहीं दिखाना है राइट। तो देखो ये कंपोनेंट चला गया, जैसे सेव किया ये कंपोनेंट चला गया राइट, इट इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेड। नाउ आई विल क्लिक ऑन प्रेडिक्ट राइट, ये वापस आ गया राइट। अब यहाँ पे अगर मैं 100 कर देता हूँ, अभी विनर इज कंप्यूटर राइट, 100 प्रेडिक्ट कर दिया, विनर इज प्लेयर राइट। जितनी बार भी 100 पे करूंगा विनर विल ऑलवेज बी प्लेयर, जितनी बार 0 पे करूंगा विनर विल ऑलवेज बी कंप्यूटर राइट। ये क्लियर है? सो ऑलमोस्ट हमने एक पार्ट क्रिएट कर दिया राइट, हमारे पास गेस नंबर आ गया, प्रिडिक्ट बटन काम कर रहा है, ये चेंज हो रहा है, based upon the prediction this message is correctly getting updated right, and it is correctly getting displayed who is the actual winner. And here we have used the different component for showing the message right, and we have achieved the conditional rendering as well right। conditional rendering कैसे, जब रिजल्ट आउट है तभी ये वाला कंपोनेंट दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ राइट। क्लियर टिल हियर? क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? कुछ लग रहा है कि कुछ बना, कुछ हो रहा है, या सब ऐसे ही चल रहा है? थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो बताओ, आई विल मॉडिफाई समथिंग। अरे फील फ्री टू से कि नहीं हो रहा है सर, बहुत बकवास चल रहा है, कुछ नया बताइए, ये सब पता है ऑलरेडी। ठीक है चलो। और देखो देखो, एक अगर मैं 100 बच्चों का 150 बच्चों का क्लास इमेजिन करो राइट, सो देयर विल बी ऑलवेज बेल कर्व होता है राइट। तो उसमें कुछ बच्चे होंगे जो कि थोड़ा ज्यादा करते हैं राइट, मतलब वो पहले से पढ़ के रखते हैं, कोई होंगे जो जनरली नहीं पढ़ के रखते हैं, कोई होते हैं जो टेक्स टाइम राइट। तो वी नीड टू टेक एवरीवन ऑन द सेम पेज। तो हो सकता है किसी के लिए स्लो होगा, किसी के लिए फास्ट होगा राइट, कुछ नहीं पता है। तो मैं आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बेसिक बताऊं, एंड मैंने हमेशा ये बोला है राइट कि डाउट पूछने से कभी भी पीछे मत हटो। आई डोंट नो अबाउट प्रीवियस इंस्ट्रक्टर कि उनके पढ़ाने का वे क्या था, उनको बस पढ़ाना था या क्या करना था। यहाँ पे आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अनम्यूट करके भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड नॉइज आएगा वो भी चलेगा फॉर मी, ठीक है। इसीलिए मैं समवन सेज कि सर म्यूट ऑल कर दो, जनरली आई अवॉइड कि किसी को पूछना है पूछने दो, हाँ बट कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है अनम्यूट होने से, बट ठीक है। सो कभी भी कोई डाउट है तो बिंदास पूछो, आई एम ऑलवेज अप फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए मैंने बेसिक से इसको बिल्ड किया है क्योंकि सीधे ये देखोगे ना तो थोड़ा हार्ड लगेगा, बट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। कोई डाउट है क्या अभी तक? क्लियर, ठीक है। मैं एक बार ओवरव्यू दे दूंगा इसका, जैसे ये कंप्लीट होता है, बस लास्ट स्टेज पे है, मैं लाइफ साइकिल मेथड ऐड करूंगा, उसके बाद आई विल गिव अ ओवरव्यू एज वेल, ठीक है।
और अगर आज नहीं भी ओवरव्यू कंप्लीट कर पाया तो कल का फर्स्ट 15-20 मिनट्स मैं इसका ओवरव्यू ही दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी कि सर कुछ समझ में नहीं आया एंड ऊपर से निकल गया, पूरा चीज समझ में आएगा, ठीक है। कूल, ओके। So we are rendering the component, ठीक है, based upon some condition, conditional rendering कर रहे हैं. If the result is out, then only this message will be displayed, right? But now we need to do what? We need to reset this game, ठीक है। reset this game मतलब एक बार जब विनर प्रिडिक्ट हो गया, राइट, तो फिर रीसेट करना पड़ेगा ना कि गेम फिर से हो। तो एक काम तो कर सकते हैं, we can reload the page only, right? But better क्या होगा, we'll give some reset button, okay, right? Now for that what we will do, right, यहाँ पे if you guys remember yesterday we have promised, right, we will see how to pass a method as a props, right? We have discussed this, right, we will pass the method as the props and from there we will try to achieve two-way data binding. ये statement याद है कि नहीं? बस सिर्फ इतना, ये statement याद है? Yesterday we told, right, yesterday or day before yesterday जब भी बोला था, you will pass the method as the props, okay, and that we will use, that callback method we will use to achieve two-way data binding. We'll see how, okay. This is not a right design यहाँ पे, okay, but हम क्या करेंगे, reset button को will keep as part of the winner message for now, okay. जनरली ऐसे नहीं करेंगे कि विनर मैसेज वाला जो कंपोनेंट है उसी में तुम रीसेट बटन भी घुसा दो, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस लेट्स हैव द रीसेट बटन इन द विनर मैसेज कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, राइट, यहाँ पे लेट्स क्रिएट अ बटन, ओके, बटन, इसका नाम दे देते हैं रीसेट, ओके, ठीक है। तो एज सून एज दिस विनर इज कंप्यूटर, यहाँ पे एक रीसेट बटन आ गया, राइट, बट रीसेट बटन पे क्या ऑपरेशन होना चाहिए? This time I want someone to unmute and answer कि reset button पे सर क्या करना चाहिए अपने को? Anyone? और नहीं अनम्यूट कर सकते हो तो टाइप कर दो। सर रीसेट बटन पे कहते हैं, हमें कहते हैं कोड को दोबारा से रन करा सकते हैं। देखो रन कराना इज ओके, बट रन कराते तो फिर मैं रिलोड कर लेता ना पेज को। रिएक्ट एप्लीकेशंस वगैरह का फायदा ये है कि जनरली वी डोंट ट्राई टू रीलोड द पेज, राइट। एक सही है, गेस इक्वल टू 0, प्रेडिक्ट इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो राइट। रीसेट द डेटा, फाइन। एक इंपॉर्टेंट फील्ड था जिसको अपने को फॉल्स सेट करना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू 0 ऑन क्लिक पर डेफिनेटली ऑन, हाँ एग्जैक्टली प्रदीप, राइट। वी नीड टू सेट द रिजल्ट प्रॉपर्टी एज फॉल्स, राइट। जैसे ही रिजल्ट प्रॉपर्टी हम फॉल्स करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हम रिजल्ट प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये कंपोनेंट हाइड हो जाएगा, राइट। ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले ही नहीं होगा, राइट। तो ये रीसेट बटन चला जाएगा, विनर इज कंप्यूटर, ये मैसेज चला जाएगा, राइट। रीरेंडर द पेज नहीं करते हैं बिकॉज रीरेंडर इज अ कॉस्टली अफेयर। मत तुम पूरे पेज को रीलोड कर लो, इट इज नॉट अ राइट आइडिया। रिएक्ट पॉपुलर क्यों है ये समझो। रिएक्ट या जो भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, व्हाई दे आर पॉपुलर? बिकॉज दे अचीव द क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इससे पहले क्या होता था, जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी थे पुराने जमाने की, राइट, जेएसपी, एएसपी, राइट, वो क्या करते थे, सर्वर साइड रेंडर करते थे। मतलब पूरा पेज सर्वर पे बनता था, तुम्हारे ब्राउजर तक वो पेज आता था, तुम यहाँ पे कोई भी चेंज करो, वापस रिक्वेस्ट जाती थी, पूरा पेज बन के आता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि पूरा का पूरा पेज बन के आएगा तो बहुत कॉस्टली है, राइट। तुम्हारा नेटवर्क बैंडविड्थ जा रहा है, टाइम जा रहा है, takes time, exactly, that's what the single page applications are popular। इसमें जहां पे तुम चेंज करोगे सिर्फ वही पार्ट री रेंडर होना चाहिए, बाकी पूरा का पूरा कंपोनेंट, पूरा का पूरा पेज should remain exactly same। Got it? क्लियर है? तो अपने को क्या करना है, रीसेट द वैल्यू नंबर 1, एंड दूसरा क्या करना है अपने को, फ्लैग को फॉल्स सेट करना, फ्लैग विच रिजल्ट फ्लैग विल सेट टू फॉल्स, राइट। बट वेयर डू वी हैव दिस रिजल्ट फ्लैग? इज दिस फ्लैग अवेलेबल इन the child writer message, winner message component? Yes or no? No, right? Because this method, this property is the state property of which class? My game class. It is not accessible in winner message class. Then how the winner message can reset, right? अब समझ में आ रहा है why we have taken this example? reset button को हमने winner component में क्यों रखा है? Because can't we export it state? नहीं, state is bind to a class, मतलब state एक class की property है, it should never be shared,
Yes, exactly. We need to pass the method or a callback method as a property. Okay, so that we can update the state. So let's create a method here. Okay, my game में जिसका नाम देंगे हम लोग क्या, reset. Okay, reset game. And reset game पे क्या करना है अपने को, what we need to do on the reset game? कोड लिख के फट से बताओ, चलो कोई कोड लिख के बताओ. This time I'm not going to write the code, you guys write the code कि क्या क्या कोड लिखना होगा रीसेट पे, सिंटेक्स के साथ. मतलब सिंटेक्स थोड़ा इधर उधर हो चलेगा, बट क्या लिखना है वो बताओ. और अनम्यूट योरसेल्फ एंड से. हाँ, ऐसे नहीं चलेगा नागेंद्र. नॉट ओनली दिस वैल्यू, राइट, यू नीड टू टेल मी. यस, सेट स्टेट ने दिस डॉट सेट स्टेट पूरा एग्जैक्टली कंप्लीट. we need to write this dot but will affect in my game reset and winner message. Reset and winner message, but how it will affect in my game, मैं इसमें ये दिखाता हूँ. We need to set the result to false, right? So we'll use the set state. प्रदीप, ये तुम्हारा पॉइंट क्लियर नहीं, एक बार एक्सप्लेन करना थोड़ा, ठीक है? So for now अपने को रीसेट करना है स्टेट को, राइट? This dot set state, right? Exactly, यही. This dot set state result to false, result to false. Okay, और बाकी प्रेडिक्टेड वैल्यू जितना भी है उसको जीरो कर देते हैं, राइट? रीसेट फॉल्स, एग्जैक्टली. एंड देन विल से प्रेडिक्शन एज जीरो. ये तो सिंपल है, प्रेडिक्शन जीरो, प्रेडिक्शन जीरो. एंड और क्या है, प्रेडिक्शन जीरो है. और गेस इसको भी जीरो कर देते हैं फॉर नाउ, गेस जीरो, ठीक है. एंड विनर जो मेरा था, विनर, इसको भी एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, राइट? यही था ना, प्रेडिक्शन गेस विनर, प्रेडिक्शन गेस विनर. कूल. I thought reset is in winner message component. हाँ देखो, reset method is here, right? What we discussed, will pass the method as a props, right? So props, from where to where we pass the props? We pass the props from parent component to child component, right? And who is the child component in this case? And who is the parent component? My game is the parent component. Winner message is the child component, right? And we need to pass the method as the props. तो method कहाँ पे लिखेंगे? My game में, right? So that's what we have this reset game here, right? That we need to pass as the props. तो यहाँ पे आते हैं, right? We'll say pass reset is equal to, ठीक है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताओ. मेथड पास कर रहे हैं, राइट? दिस डॉट रीसेट. रीसेट गेम था मेथड का नाम क्या? रीसेट गेम ही है ना, रीसेट गेम, राइट? हाँ. सो विल पास रीसेट गेम, राइट? कोई डाउट इसमें? props dot reset game. हाँ, yes, and props dot reset game will use where in our winner message. तो as soon as we will click on this, तो इसके on click पे हम क्या लिखाएंगे? On click, right? Method है, right? तो method किस पे असाइन कर सकते हैं? एक on click listener पे. तो on click listener is equal to this dot props dot reset. Cool. अब एक बार देखते हैं, राइट? यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 100. ओके, क्लिक प्रेडिक्ट, राइट? कंप्यूटर हैज गेस्ड 59, द विनर इज प्लेयर, राइट? क्लिक ऑन रीसेट, गायब. गॉट इट? एंड देख लो वही कॉल हो रहा है कि नहीं. यहाँ पे मैं लॉग लगा देता हूँ, ठीक है? प्रेडिक्ट रीसेट गेम, राइट? console.log. बीच में स्क्रीन से डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? You guys can see my screen, right?
ओके ओके, ब्रेक नहीं हुआ था ना बीच में कनेक्टिविटी? ओके कूल, नहीं बिकॉज यहाँ मैसेज आया था पार्टिसिपेंट कैन सी योर स्क्रीन, तो मुझे लगा ओके। रीसेट गेम, ओके देख लो, सेव किया, ठीक है, यहाँ पे प्रेडिक्ट किया, विनर इज कंप्यूटर ऑब्वियसली। रीसेट पे गए, देखते हैं, रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ अभी मैं, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। रीसेट पे क्लिक किया, देखो आ गया, राइट। एंड ये कहाँ से इन्वोक हो रहा है? माई गेम कंपोनेंट 26 लाइन, माई गेम 26 लाइन, राइट। मतलब यही वाला मेथड कॉल हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? we are passing the method as the props to child component, right? From a parent component we are passing callback method as the props to child component, ठीक है। अब हमने एक चीज बात की थी, राइट, रिएक्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग। यस वही एग्जैक्टली जावेद, आई एम कमिंग टू एग्जैक्टली सेम पॉइंट, एकदम अभी मैं यही पॉइंट बताने वाला हूं, ठीक है। रिएक्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग, राइट, एंड वी हैव आल्सो सीन कि how we can achieve two-way data binding by passing the callback method as the props, right? तो two-way data binding achieve करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ डेटा वापस भेजना पड़ेगा, राइट। देखो टू-वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या? देखो तुम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर रहे हो, सो दिस इज अ वन वे डेटा बाइंडिंग, राइट, पेरेंट टू चाइल्ड ओनली। टू-वे डेटा बाइंडिंग का मतलब है दोनों साइड से डेटा जा सकता है, so from child to parent as well you can pass on the data. So one way data binding is parent to child and two way data binding is passing from child to parent as well, both are possible. Clear? Are we okay? Now we need to pass on some data, right? अभी तो नहीं तो बोलोगे कि सर आपने मेथड तो कॉल कर दिया, डेटा तो पास हुआ नहीं है, फिर कौन सा डेटा बाइंडिंग, राइट। सो नाउ विल पास ऑन द मेथड्स, एग्जैक्टली सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखो जैसे हम लोग नॉर्मली कॉलबैक मेथड पास करते थे, राइट, कॉलबैक मेथड में कुछ वैल्यू पास करना है, इवेंट पास कर दो ई, राइट। इसके लिए क्या लिखते हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड जावेद। यहाँ पे हमने एक चीज तुमने जावेद मिस किया, वो ऐसे है, ये किया, ठीक है, उसको तुम पैरामीटर पास करोगे, राइट, ये जो इवेंट पैरामीटर है उसको तुम यहाँ पे दोगे, राइट। तो हमने इस इवेंट को यहाँ पे दिया एंड विल रिसीव इट हियर, राइट। रिसेट गेम में हमने रिसीव किया भी है, वो पहले से ही रिसीव लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ विल कंसोल डॉट लॉग दिस एज वेल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, console.log e, ठीक है, गॉट इट। एंड इस लाइन को फिर से कॉपी कर देता हूं, नहीं तो बोलोगे कि सर ये तो दूसरा इवेंट डिस्प्ले है, ठीक है, ताकि पता रहे कि जो बीच वाला है वही सही है, राइट। कूल, विल सेव दिस। आते हैं यहाँ पे प्रेडिक्ट पे, प्रेडिक्ट क्लिक किया, राइट, विनर कंप्यूटर हो गया, इसको मैंने इरेज किया, राइट, कंसोल लॉग को। क्लिक ऑन रीसेट, देखो हम क्लिकिंग ऑन रीसेट नाउ, रीसेट पे क्लिक किया, सी पहला मैसेज रीसेट गेम, देख लो, राइट, लाइन नंबर 26 पे। सेकेंड मैसेज ये पूरा इवेंट आया, राइट, देखो बड़ा सा इवेंट आ गया। एंड द थर्ड मैसेज इज अनेस रीसेट गेम, लाइन नंबर 28 पे, गॉट इट। सो इन दिस वे वी कैन पास ऑन सम डेटा एज वेल, राइट। तुमको और भी डेटा पास करना है, अभी हमने ई पास किया, तुमको कुछ और डेटा पास करना है तो तुम यहां से कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे तुमने स्पेसिफाई किया था अपना स्टेट, हाँ या गो अहेड, जिसको डाउट है, शिवम, राइट, कोई डाउट है क्या शिवम? Any doubt? Anyone? Okay. Cool. This dot state, ठीक है, state is equal to simply क्या लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है। सो लेट्स पास दिस वैल्यू। अगर तुमको ई नहीं पास करना, इवेंट नहीं पास करना, तुमको कुछ और पास करना है, ठीक है, तुम यहाँ से this dot state dot पास कर दो, क्लिक ऑन प्रेडिक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक ऑन रीसेट, देखो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, देखो आया, क्या प्रिंट हुआ, सॉरी, हाँ क्या प्रिंट हुआ, निब्बा, राइट,
जो हमने यहाँ से पास किया था, राइट। तो इसका मतलब है हम यहाँ से कोई स्टेट भी पास कर सकते हैं, हम यहाँ से कुछ भी पास करते हैं, कोई भी डेटा पास कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? अब क्लियर हुआ, टू वे डेटा बाइंडिंग अचीव हुआ कि नहीं हुआ? वन वे डेटा बाइंडिंग इज पेरेंट टू चाइल्ड, टू वे डेटा बाइंडिंग इज पेरेंट टू चाइल्ड एज वेल एज फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। तो अगर तुमसे कोई पूछे, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुमसे कोई पूछे कि रिएक्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग, क्या बोलोगे? देखो, जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछे ना कि रिएक्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग या टू वे डेटा बाइंडिंग, तो उसका आंसर हमेशा करना रिएक्ट इज अ वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट हमेशा वन वे डेटा बाइंडिंग ही प्रोवाइड करता है, रिएक्ट हमेशा वन वे डेटा बाइंडिंग ही प्रोवाइड करता है। बट जैसे ये लाइन आंसर करो, साथ में ये लाइन ऐड करना, ताकि तब ये बताएगा कि तुमको नॉलेज है। बट वी कैन अचीव टू वे डेटा बाइंडिंग बाय पासिंग द मेथड एज द प्रॉम्प्ट, कॉलबैक मेथड एज द प्रॉम्प्ट। देखो, रिएक्ट का जो कंस्ट्रक्ट है दैट सेज कि तुम वन वे डेटा बाइंडिंग अचीव करो, तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है टू वे डेटा बाइंडिंग अचीव करने का। ये एक तरीका दिया गया है, ठीक है, जिससे तुम कर सकते हो। तो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट सेज वन वे डेटा बाइंडिंग, इसलिए जब तुम रिएक्ट और एंगुलर का डिफरेंस देखोगे, वेयर वी आर पासिंग द वैल्यू इन ई, ओके यूनिट, ओके ठीक है सर, एक सेकंड मैं उस पे आता हूं वापस, ठीक है। आई विल जस्ट कंप्लीट दिस पॉइंट एंड देन आई विल कम टू योर पॉइंट। देखो, रिएक्ट एंड एंगुलर का जब तुम डिफरेंस देखोगे, सो वन ऑफ द ऑब्वियस सेट डिफरेंस इज रिएक्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग वेयर एंगुलर इज टू वे डेटा बाइंडिंग, बट नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ऑल्दो रिएक्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है, अगर कोई पूछे तो हमेशा ये आंसर ये होगा रिएक्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग, बट कंप्लीट दैट सेंटेंस विथ we can achieve two-way data binding by passing callback method as the props, ठीक है। और उसका सिंपल सा एग्जांपल ये है, राइट, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू योर क्वेश्चन जावेद। ओके अजहर, सॉरी, can you please repeat this last part where you are passing the value in e? That means line number this 13, right? ये ई के लिए वरीड हो क्या? देखो, इसका सिंटेक्स कैसा है ना, यस वी कैन रिमूव दिस ई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ से इस ई को रिमूव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वर्क कर, ठीक है, इट्स वर्किंग, राइट। सो ई, देखो ई का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जब भी तुम किसी पे ऑन क्लिक या कोई भी लिसनर लगा रहे होते हो, तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो लिसनर लगता है वो एक वैल्यू पास करता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे हमने ऑन चेंज पे देखा, राइट, उसमें भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आया था। पे ये बटन है, तो इसमें बटन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर तुमको वो रिसीव करना है तो दैट यू कैन टेक इट एज अ इवेंट, ठीक है। मैंने ई नाम दिया है इसको, तुमको इवेंट नाम देना, इवेंट दे दो इसको, तुमको सॉरी निब्बा अकेला रह गया था तो इसको निब्बी भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम तुमको निब्बी देना है तो निब्बी दे दो, ठीक है, कूल। तो जो चाहो दे सकते, ठीक है। वहां अकेला अकेला अच्छा नहीं लग रहा था तो साथ में देना चाहिए था, ऐसे निब्बा निब्बी अच्छा लगता है साथ में, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा चलो, एक बार सब मुझे ये बताओ, ठीक है, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्लियर हुआ तो सब मेरा नाम दोस्त, अच्छा ठीक है, मंडल, तुम्हारा नाम सिराजुल, राइट, सिराजुल, ठीक है, तुम्हारा नाम अब आगे आएगा सिराजुल। वीक वीक इन लोगों का है, राइट। आज कौन सा डे, आज 12 है, राइट, आज 12 फेब है ना वो, अच्छा 11th की नाइट चल रही है, हाँ, या 11th मॉर्निंग है तो 11th की नाइट चल रही है, हाँ। तो आज कौन सा डे है? प्रॉमिस तो कल था ना, ये आजकल के लग रहा है, देखो लोगों को पता भी नहीं है, कितना कंफ्यूजन चल रहा है, रोज है कि टेडी है कि प्रॉमिस है, ये तुम लोग नहीं बनोगे निभाने में, मुझे पूरा भरोसा है। एनी गर्ल्स है, ठीक है, एनी गर्ल्स है, देखो वो एकदम करेक्ट टाइप करेगी, उनको एकदम सब पता होता है। कोई गर्ल है यहाँ, वो टाइप करो यार, मुझे नहीं पता है सीरियसली, मुझे
मैंने अभी आजकल बहुत सारे स्टेटस चल रहे हैं तो उसमें देख के मुझे पता है कि क्या क्या कौन कौन से दिन चलते रहते हैं। हाँ टेडी था कल, क्योंकि टेडी मैंने एक दो दिन पहले किसी के स्टेटस में देखा है। ये क्लास में कोई लड़की नहीं है क्या? कितना मतलब जेंडर रेशियो खराब है क्लास का। मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, ये इस क्लास का एजेंडा नहीं है। नया डूबे डे, ओ ये इंटरेस्टिंग आंसर है, ठीक है, बट इवनिंग है वहां पे, डे नहीं है। यार इतना खराब पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, ठीक है, वापस आए अपने कोड पे। यार लेकिन अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला, मुझे खुद ही सर्च करना पड़ेगा क्या? तुम लोग इतने जो पूछ रहे हो कि सर कौन सा दिन है, कौन सा आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, उसका आंसर तुमको इससे नहीं पता चल रहा है कि अगर होती तो मुझे डे पता होता ना। हाँ नेशनल हॉलीडे नहीं घोषित करना है क्या सिराजुल? छुट्टी मिलेगी क्या? नेशनल हॉलीडे बना देते हैं उस दिन। अजय एकदम पूरा जोश में है कि हाँ आज तो सब प्रॉमिस ही है। किसको प्रॉमिस, कितने को प्रॉमिस किए हो? चलो ठीक है, वापिस आते हैं, ठीक है। चलो एक और बाकी लाइफ साइकिल मेथड देख लें, उसके बाद कोड रिवाइज करें, या अभी यू गाइस वांट कि इसको एक बार पूरा फिर से समझ लेते हैं? इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कोड रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलो, उससे पहले आई गेस आई वांट यू गाइस टू राइट वन थिंग, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ठीक है, एंड बी ऑनेस्ट हियर, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि समझ में आया तो सब हाँ ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द, बट उससे काम नहीं चलेगा। टेल मी इन परसेंटेज फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, कितना परसेंट समझ में आया आज का क्लास? बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए 100% वाला नंबर, ठीक है। 50-50, 50-70, 50-70, 60, ठीक है, चलो कूल। हाँ रिवाइज तो ऑब्वियसली करना, क्योंकि ऐसे जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं होगा ना ये नहीं समझ में आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो कल को जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो इसका एक पार्ट भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी याद नहीं रहता था कि मैं भी वीडियो देख रहा था, राइट, यूडेमी पे कोर्स कर रहा था, तो मुझे खुद ही नहीं याद रहता था टाइप करने के टाइम यार क्या टाइप करना है, क्लास में क्या टाइप करते हैं वो देख करके थोड़ा थोड़ा टाइप कर रहा था, राइट। तो एक बार समझते हैं इसको, ठीक है। ओके वापस आते हैं माई गेम कंपोनेंट पे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। हमने एक कंपोनेंट बना दिया, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट। नाउ ये जितना पार्ट है, राइट, दीज आर प्लेन सिंपल HTML, इसमें समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टेकन अ इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, राइट, whenever we click on a button या whenever we type something in the input box, right, it should change something, it should hold some value, right। क्योंकि जब मैं प्रेडिक्ट करूंगा, राइट, जब मैं प्रेडिक्ट पे क्लिक कर रहा हूं, फुल स्क्रीन, ओके कूल, ठीक है। सो whenever we'll click on that button, right, we need to know कि what the previous value that was entered by the user, right, and what is the value that the computer is guessing, right, ये दो वैल्यू चाहिए। तो दूसरे के लिए, राइट, कि व्हाट द यूजर इज इनपुट, नॉर्मली हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आईडी पास करो, डॉट गेट वैल्यू, राइट, वो करते थे। यार इस कोड में ऐसा कुछ है क्या जो गिट पे जाने लायक है? इस छोटू सा तो कोड है, अभी तुम लोग 10 मिनट बैठोगे ये कोड लिख दोगे। मैं चाहता हूं कि ये कोड तुम लोग खुद से लिखो, ठीक है। तुम लोगों के पास क्लास की भी रिकॉर्डिंग है, सब न्यू है, ठीक है। मैं ऐसे ट्राई करूंगा ये कोड दे देने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कूल, ठीक है। मैं या तो कुछ करता हूँ, मैं इस कोड के लिए कोई तरीका निकालता हूँ, या तो मैं पुश करता हूँ गिटहब पे, या आई विल फाइंड सम वे, ठीक है।
कूल, ठीक है, वापस आते हैं। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैसे करते थे? तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड उसका गेट वैल्यू कर देते थे, राइट? दैट इज वन ऑफ द वे, राइट? बट हम लोग रिएक्ट में क्या है कि दिस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई है। तो रिएक्ट का जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है विच हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो sorry I was talking in Hindi, right? No, we need to cover both in English and Hindi. Okay, so what actually the state means, right? State holds some property of that component, ठीक है? स्टेट को तुम ऐसे समझो, ठीक है, स्टेट इज सम वेरिएबल, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स द करंट वैल्यूज फॉर अ स्टेट। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है कि व्हाट इज स्टेट? which persist not after the application till the component is mounted, that is persisted, ठीक है? You can change or update that, but as soon as the component get unmounted it will get destroyed. जब तक कंपोनेंट माउंटेड है तब तक वो स्टेट रहेगा, कंपोनेंट अनमाउंट होता है, माउंट मतलब जब कंपोनेंट एक्चुअली डॉम में रेंडर हो रहा है, अनमाउंट मतलब जब कंपोनेंट को डॉम से बाहर निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, राइट? तो टिल द टाइम कंपोनेंट इज माउंटेड द स्टेट इज प्रेजेंट, एज सून एज द कंपोनेंट इज अनमाउंटेड द स्टेट गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है? एंड स्टेट इज अ लोकल टू अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। जैसे इस कंपोनेंट का एक स्टेट है, दूसरे कंपोनेंट का दूसरा स्टेट होगा, सो दैट स्टेट इज ओनली लोकल टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? लाइक ए वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन, एग्जैक्टली कह सकते हो, मतलब समझने के लिए समझ लो कि एज अ वेरिएबल इज टू अ फंक्शन, स्टेट इज टू अ कंपोनेंट, ठीक है? सो ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन स्टेट and the other component does not interfere with its state. Kind of a local variable of a class, okay? ठीक है? उसके बाद ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि स्टेट क्या है। स्टेट समझ में आ रहा है? स्टेट कितना परसेंट समझ में आया है? अभी भी 50-50 है, स्टेट थोड़ा बड़ा है? ओके, देखो, स्टेट इज लोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास, ठीक है? मतलब स्टेट को एक ऑब्जेक्ट समझो, राइट? जिसमें कि बहुत सारे प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट क्या, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें मल्टीपल की वैल्यू होते हैं, राइट? तो सेम वे स्टेट में देयर आर मल्टीपल कीज एंड उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगा, ठीक है? माउंट एंड अनमाउंट कल वाले लेक्चर में देखेंगे जब लाइफ साइकिल मेथड देखेंगे। तो माउंट मतलब समझ लो जब कंपोनेंट डॉम में रेंडर होता है, मतलब इस वाले केस में यहाँ पे जब रिजल्ट ट्रू हो रहा था, राइट? तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हे कंपोनेंट जाके डिस्प्ले करो, और जैसे ही रिजल्ट फॉल्स था तो हम लोग क्या बोल रहे थे, नल डिस्प्ले करो। तो जब भी हम नल डिस्प्ले कर रहे हैं इसका मतलब है हम लोग उस कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे हैं, एंड जब कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, कंपोनेंट को माउंट कर रहे हैं। रिएक्ट में ये टर्मिनोलॉजी माउंट एंड अनमाउंट ही है, ठीक है? नॉर्मली घर में यूज करते हो ना, टीवी क्या करते हो, जब टीवी खरीदते हो, राइट, टीवी को माउंट करते हो, राइट? वॉल माउंट आता है, राइट? जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा आता है वो क्या करता है, वॉल माउंट करता है ना, तो जो वॉल है उसमें माउंट करता है, राइट? माउंट इज एडिंग एंड माउंट इज रिमूविंग, राइट? तो माउंट मींस उसमें डॉम में फिट करना, उसको डॉम में डालना, ठीक है? गॉट इट? तो स्टेट क्लियर हुआ कि स्टेट इज जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच होल्ड्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है? उसके बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो किसी स्टेट का प्रॉपर्टी बता रहा है, एंड जब तक कंपोनेंट इज माउंटेड इट इज होल्डिंग सम प्रॉपर्टी, राइट? तो उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा, राइट? इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव सम डिफॉल्ट वैल्यू, सो दैट्स व्हाट। एंड विच मेथड गेट्स इन्वोक फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर, राइट? जब भी क्लास क्रिएट होता है, ठीक है, जब ये कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है द कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड, राइट? दैट्स व्हाट जनरली we initialize the state with a default value in a constructor method, ठीक है? ये क्लियर हुआ कि कंस्ट्रक्टर में क्यों हम लोग दिस डॉट स्टेट लिख रहे हैं?
because जो state property है that we initialize in a constructor, because that will get called first, right? So it's better to give the default values in the constructor only, and this is the only place where it is allowed, okay, to use this dot state directly. मतलब this dot state directly means directly mutate करना allowed है. हमने क्या किया, this dot state is equal to कर दिया, right? No other place apart from this where you can use this dot state directly. We should always use, yeah, exactly, Anjali, first invoke. You should always use this dot set state. ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद जहां पे भी तुमको स्टेट चेंज करना होगा, which method we will use? अच्छा देखो, आई नो इट्स लेट फॉर यू गाइस, ठीक है, ऑलरेडी 11 बजने के आसपास होगा, ठीक है, बट अगर कुछ लोग हैं जो सेपरेट रूम में रहते हैं, ठीक है, अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है, लेट्स डिस्कस. अभी वाला जो चीज है वो डिस्कस करके चलते हैं, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग समथिंग. So even if some background noise is there, that's fine. Let's try to adjust with that. Unmute yourself, speak up. ठीक है, let's discuss. Cool. Anywhere we want to change the state, we will use which method? Set state. Correct, exactly. ठीक है, इसीलिए जितने जगह पे भी माँ की हमने यूज किया है, राइट, हमने क्या किया है, सेट स्टेट. एंड नॉर्मली सेट स्टेट, स्टेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, राइट? ऑब्जेक्ट प्रतीक, दैट इज अ कॉलबैक मेथड जो हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, ठीक है, सो दैट विल कवर लेटर. ओके, सेट स्टेट, राइट? स्टेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मल्टीपल कीज होगा, राइट? तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रहा है, नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन अपडेटिंग ऑल द वैल्यूज. जैसे ये अपडेट गेस था, राइट? तो इसका काम क्या है, सिर्फ गेस वाली वैल्यू को अपडेट करना. प्रेडिक्ट का काम क्या है, प्रेडिक्ट वैल्यू को अपडेट करना, राइट? सो दिस मेथड इज ओनली इंटरेस्टेड इन अपडेटिंग वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट. तो इस वाले केस में क्या होगा, सिर्फ ये गेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो अपडेट हो जाएगी, बाकी पूरा का पूरा विल रिमेन सेम. दिस गेस विल गेट अपडेटेड टू अ न्यू वैल्यू. ठीक है, as soon as the state changes, that particular UI gets re-rendered. इसीलिए हम जब भी देख रहे थे, राइट, हमने जब यहां पे लिखा था इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट विच व्हाट टारगेट इज डूइंग. सर टारगेट में बताता हूं क्या, टारगेट पे आता हूं, जब ये ऑन क्लिक बताऊंगा तो टारगेट में बता देता हूं. अभी ये देख लो, ठीक है, इनपुट वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट गेस, राइट? तो जब हमने स्टेट को एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया था तो नथिंग वाज वर्किंग, राइट? We were not able to type anything in that option box, input box, right? Why? Because that input is now tied to a variable called state variable called guess, right? Which was not changing its value. After we are now changing this value with this method update guess, right? Every time this will get re-rendered, right? मतलब पूरा वो जो कंपोनेंट है इनपुट बॉक्स का जो पार्ट है वो री-रेंडर होगा, तभी तो ये डिस्प्ले हुआ, ये तभी तो ये वैल्यू चेंज हुई, राइट? क्लियर? हमने इस वैल्यू को अपडेट किया, अगर यूआई री-रेंडर नहीं होता, ठीक है, वो पीस री-रेंडर नहीं होता तो इस वैल्यू में, इस इनपुट बॉक्स में नया वैल्यू कैसे दिखता हमें? गॉट माय पॉइंट? अगर ये वैल्यू नहीं होता अपडेट, ठीक है, एंड अपडेट के पास री-रेंडर नहीं होता तो वो मुझे नहीं दिखता. ठीक है, कूल. उसके बाद आते हैं, ठीक है, अब आते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, कि काम ये कैसे करता है. तो जब भी जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑन कॉल जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिसनर्स बनाते थे, राइट? जावास्क्रिप्ट में लिसनर्स याद है, बहुत सारे लिसनर्स होते थे, राइट? ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन मूव, ऑन माउस ड्रॉप डाउन, ऑन की प्रेस, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट और event listener for a input box?
इनपुट बॉक्स पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिस्नर कौन सा होना चाहिए? चेंज, राइट? जब भी इनपुट बॉक्स में कुछ चेंज होगा तो वो लिस्नर। बटन पे कौन सा होना चाहिए? क्लिक, राइट? ऑन क्लिक। क्लिक मतलब ऑन क्लिक। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हेयर, ठीक है? इनपुट वाले में एक लिस्नर है ऑन चेंज, ठीक है? और रिएक्ट में तुमको वो बाइंड करने की जरूरत नहीं होती है पूरा कि ये एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर ब्ला ब्ला ब्ला। रिएक्ट में सीधे, बिकॉज जेएसएक्स का सिंटेक्स है, राइट? तो इसमें तुम सीधे पास कर सकते हो जो भी तुमको ऑन क्लिक लिस्नर, जो भी तुमको लिस्नर पास करना है, जो भी इवेंट लिस्नर पास करना है। तो यहाँ पे हम ऑन चेंज इवेंट लिस्नर पास कर रहे हैं, ठीक है? तो जब भी कुछ चेंज होगा तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, हम लोग क्या पास कर रहे थे? हम लोग पास कर रहे हैं इसको एक पैरामीटर जो कि है एक मेथड, ठीक है? जब भी ये कॉल होगा, जब भी इस पे ऑन चेंज होगा तो इस वाले मेथड को कॉल कर दो, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने ये ई क्यों लिया वो समझो। देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग इवेंट लिस्नर लगाते हैं, राइट? तो दैट गिव्स अस अ पैरामीटर, ठीक है? दैट गिव्स अस अ पैरामीटर जो वो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे वो इवेंट चला है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज अवेलेबल टू अस बाय डिफॉल्ट। कैन वी स्किप द आउटर फंक्शन? विच आउटर फंक्शन? कौन सा? ये वाला मेथड ऑल टुगेदर, अपडेट गेस, सॉरी अपडेट गेस बोल रहा हूँ, कौन सा है इसका? अपडेट गेस ही है, हाँ। So you are talking about this update guess method, Javed? On the same line, okay. यहाँ पे हाँ, we can omit this, ये हटा दो। This will work, ये वर्क करेगा, राइट? बट इसके वर्क करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तुमने इस मेथड को, ये जो अपडेट गेस मेथड है, इसको कोई पैरामीटर नहीं पास किया, राइट? राइट? तो वो जो स्टेट अपडेट करना है उसको कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू से अपडेट करना है मुझे, राइट? यू नीड टू पास ऑन सम वैल्यू जिससे पता चले कि किस वैल्यू से अपडेट करना है। दैट्स व्हाट इट टेक्स इटसेल्फ। किसको बोल रहे हो? इस मेथड को बोल रहे हो? तो अगर, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे इसको ये करते हो, राइट, ठीक है, ये वाली चीजें, तो ये काम करेगी। देखो, ओके, दिस विल परफेक्टली फाइन वर्क, ठीक है? बट अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा था, राइट, इसको यहाँ पे पैरामीटर ना दिखाऊं, ठीक है, तो फिर द क्वेश्चन विल कम कि यहाँ पे ये अपडेट गेस, ठीक है, यहाँ पे जो ये अपडेट गेस है, ठीक है, इनके सिंटेक्स में भी डिफरेंस लग रहा है, राइट? दिस इज रिसीविंग, यहाँ पे पैरामीटर इसके पास है, हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया है, राइट? तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज ट्राई टू, whenever we do some kind of a event listener, always try to pass on those event, ठीक है? so that it will be clear to you in future। नहीं तो यहाँ लगेगा कि तुमने यहाँ पे अपडेट गेस लिखा, राइट, यहाँ पे तुम यहाँ पे कुछ एक इवेंट रिसीव कर रहे हो। बोथ द वेज आर परफेक्टली फाइन, ठीक है? बट ऑलवेज ट्राई टू यूज कि अभी तुम बिगिनर्स फेज में हो, ठीक है? सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो हो कैसे रहा है। सो whenever we click on any of the object, right, we try to pass that object जिसका event, and then we can receive it there। Perfectly fine if we omit that, but always try to use that अभी के लिए। Cool। Now whenever we are clicking, that means whenever it is changing, it will call the update guess, right? update guess call होगा, right? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? देखो, इनपुट बॉक्स में, ठीक है, इनपुट बॉक्स का जो इवेंट फायर होता है उसमें देयर आर प्रॉपर्टीज कॉल्ड टारगेट, ठीक है?
एंड उसके अंदर एक है वैल्यू। तो जनरली हम लोगों ने किया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हम लोग इसको ई डॉट वैल्यू करते तब भी चल जाना चाहिए आई गेस। ठीक है। तो जब हमने वो ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था, राइट, सी जब हमने वो ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें देखो एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, एंड इन इनसाइड दिस टारगेट वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, विच हैज द वैल्यू दैट वी हैव पास्ड। ठीक है, और इसमें एक और वैल्यू होगा, इसमें देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, राइट। तो हम लोग जिस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं वो है टारगेट के अंदर वाला वैल्यू। तो दैट्स व्हाट वी हैव जस्ट रेफरेंस इट एट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो जब भी अपने को कोई भी ऑन क्लिक लिस्नर या ऑन चेंज लिस्नर लगाना है, उस पर तुमको एक मेथड को बाइंड करना पड़ेगा, कॉल दैट मेथड। ठीक है, एंड वो मेथड जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है उसको तुम एक्सेस करके जो भी प्रॉपर्टी यूज करना है कर लो। यहाँ पे हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं, राइट। स्टेट चेंज करने के लिए हमने यूज किया ई डॉट वैल्यू विल नॉट वर्क, आई गेस इट विल वर्क, इट विल वर्क। ठीक है, ये भी वर्क करेगा। ठीक है, दिस विल ऑल्सो वर्क, बट इसमें डायरेक्टली अवेलेबल है वो टारगेट ऑब्जेक्ट एंड उसके अंदर वैल्यू, तो वी कैन यूज दैट वे, और डायरेक्टली तुम वैल्यू भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो टारगेट ऑलरेडी वहां पे विजिबल था, इसलिए मैंने टारगेट डॉट वैल्यू लिया। उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं जो हमारे काम का है। जैसे प्रिडिक्ट में, राइट, प्रिडिक्ट वाज आल्सो अ ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर, राइट। बट इस वाले केस में हमको कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए नहीं उसकी, दैट्स व्हाट वी हैव डायरेक्टली कॉल दिस प्रिडिक्ट। ओके, एंड हम लोग इसमें बोल रहे हैं, इसमें हम लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिया है, राइट, एंड वी आर डायरेक्टली सेइंग प्रिडिक्ट क्लिक, एंड हम लोग बाकी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बाकी में ये वाला पार्ट तो क्लियर है, एक रैंडम नंबर गेस कर रहे हैं, स्टेट स्टेट जो प्रीवियस स्टेट का वेरिएबल था वो रिसीव कर रहे हैं, राइट, दिस डॉट स्टेट डॉट गेस। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट स्टेट। ठीक है, तो सेट स्टेट में हम लोग इस बार 3 प्रॉपर्टी एडिट कर रहे हैं, पिछली बार में एक प्रॉपर्टी एडिट कर रहे थे। तो लेट्स सपोज इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला लगाया ऑन क्लिक लिसनर, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे बस क्या की है, कंडीशनल रेंडरिंग की है। कंडीशनल रेंडरिंग क्या की है, अगर जो हमारे रिजल्ट वेरिएबल है वो ट्रू है तो ये कंपोनेंट डिस्प्ले करो, अगर नहीं है तो फिर नल डिस्प्ले करो। दैट मीन्स अगर इस गेम का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, तो विनर मैसेज वाला कंपोनेंट डिस्प्ले करो, नहीं तो नल डिस्प्ले करो। दैट मीन्स वो जो कंपोनेंट डिस्प्ले था उसको अनमाउंट कर दो। ठीक है, एंड सेम वे देखो जैसे ही स्टेट चेंज होता है, ठीक है, यूआई री रेंडर होगा। एंड री रेंडर हुआ इसीलिए, ये भी यहाँ इसी बात का प्रूफ है, री रेंडर हुआ इसीलिए ये नहीं डिस्प्ले वो ये हट गया, राइट। जैसे ही हमने रीसेट को फॉल्स किया, सॉरी रिजल्ट को फॉल्स किया, ये वाला कंपोनेंट हट गया था, राइट। 3 times only 1 time in a set state where we updated on 3 state। देखो अगर हम सेट स्टेट में 3 या 4 या जितने भी वैल्यू अपडेट करो, GUI gets re-rendered after completing the state update, so it will do a single update। तो जब तुम्हारा सेट, इसीलिए सेट स्टेट मेथड बनाया गया है, ठीक है, कि जब तुम्हारा सेट स्टेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिएक्ट डिसाइड करेगा कि तुमको यूआई को री-रेंडर करना है कि नहीं करना है। उसके बाद भी अगर तुम 2 बार सेट स्टेट कॉल करो तब भी 2 बार नहीं रेंडर होता है, कभी कभी रिएक्ट ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि बोथ आर डूइंग द सेम ऑपरेशन, सो आई विल री-रेंडर द यूआई ओनली वंस। बट टू आंसर दिस क्वेश्चन इट विल बी रेंडर्ड ओनली वंस। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से एलिब्रेट हो गया, राइट, कि जैसे ही एक स्टेट चेंज होता है यूआई री-रेंडर होता है, इसीलिए यहाँ पे ये कंपोनेंट हटा था। ठीक है, क्लियर है।
चलो मैं एक ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करने का भी ट्राई करता हूँ, ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है। सिंटेक्स ऑफ 58 लाइन, एक सेकंड, मैं वो सिंटेक्स पे मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या है 58 लाइन पे। डॉक्यूमेंट्स ठीक है, ठीक है। एनीवेज हम ऐसे भी हम जस्ट रिवाइजिंग, ठीक है। सो whoever wants to drop can drop, ठीक है। मैं 2-3 और मिनट लूंगा, ठीक है। if else कंडीशन यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, अच्छा लाइन नंबर 30, ओके। देखो ये कुछ नहीं है, ये एक if else कंडीशन है, ठीक है। तो if else ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज किया if else की जगह पे, तो मैंने क्या बोला है, अगर मेरे रिजल्ट का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट ये वाला पार्ट करो, ठीक है। नहीं तो अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट करो, ठीक है। सो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स ये ऐसे होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये है इफ, ठीक है, और ये है एल्स, ठीक है, एल्स। और यहाँ पे तुमको करना है कंपोनेंट, कंपोनेंट, और यहाँ पे करना है, ठीक है। सो टर्नरी ऑपरेटर कैन बी ब्रोकन डाउन दिस इनटू इफ एंड एल्स, ठीक है। तो सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो फर्स्ट वाला पार्ट, अगर वैल्यू फॉल्स है तो सेकंड वाला पार्ट। सो दिस इज जस्ट द सिंटैक्स ऑफ अ टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, देन ट्रू वैल्यू, एंड देन फॉल्स वैल्यू, वन लाइनर, करेक्ट। क्लियर हुआ ये टर्नरी ऑपरेटर, लाइन नंबर 58 जिसने बोला था, अंजलि, लाइन नंबर 58 क्लियर। कंडीशन ट्रू कंडीशन, हाँ एग्जैक्टली, बस वही, वो जो तुमने सेमी कोलन दिया है वो कोलन है खाली, बस, राइट, कूल, ठीक है। मैंने फाइल अपलोड कर दी, एवरीवन गॉट द फाइल, ठीक है। सो एवरीवन डाउनलोड दैट फाइल, ठीक है, उसको रिवाइज करो, ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। कल पहला 10 मिनट वी विल, पहला 10 to 15 मिनट्स विल ट्राई टू डिवोट इनटू दैट, ठीक है। कोई डाउट होगा सो विल टेक दैट, क्या मॉडिफाई करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करो चला लो, ठीक है। चलाना कैसे है वो क्लियर है, राइट। हमने दो कंपोनेंट बनाया है, दैट कंपोनेंट यू कैन प्लग इनटू योर ऐप कंपोनेंट, इतना तो आ गया होगा, 2 दिन में इतना क्लियर हो गया, राइट, कि चलाना कैसे है उसको। मैंने सिर्फ 2 फाइल शेयर की है, ऐप कंपोनेंट एंड विनर कंपोनेंट। सो उन दोनों कंपोनेंट को तुमको प्लग करना पड़ेगा जहां पे तुम्हारे app.js में जैसे करना, ठीक है। उसमें मॉडिफाई क्या करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आना, ठीक है, एक यहाँ पे एक लेबल ऐड करो, ठीक है, कि इंटर प्लेयर नेम, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स दो जिसमें बंदा अपना प्लेयर नेम एंटर करेगा, ठीक है। एंड वेन एवर वी से, ठीक है, प्रिडिक्ट द विनर इज कंप्यूटर के जगह पे कंप्यूटर होगा, और वेन एवर से द विनर इज प्लेयर, उसके जगह पे प्लेयर नेम होना चाहिए, राइट। सो दैट्स द असाइनमेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। सो टुमारो आई विल आस्क सम गाइस रैंडमली टू शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी कि वो कैसे किया है, ठीक है। सो एवरीवन एटलीस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट।